Hi students, welcome back. We have been discussing about the second lesson, Lost Spring. Spring season is the best of all the seasons. Just like the spring season of a life is childhood. So, lost spring indicates lost childhood. Stories of stolen childhood. So the story clearly concentrates on the theme child labor. So we have already discussed about the first part about the people who work in Simavali. Their main work is to pick up garbages. One of the boys' name was Sahib. और साहब के साथ उनका रिलेशन क्या था? We learned it. Finally, Sahib got a job. दिन में भी ₹1 कमाने वाला एक बच्चा, he got a job in a tea stall. He got 800 rupees on all his meal, but he had lost his carefree look. Karen, the plastic bag, even though it was heavy, he used to carry it with very elation. But इतना खुशी के साथ भारी बैग कंधे पे उठा के जाते थे. बट वो छोटा सा 1 किलो 2 किलो का दूध का कंटेनर, it seemed heavier than the plastic bag. कारण साहब अभी उनका मास्टर नहीं है. So everybody in the world wishes to be free. Second part deals with the people of Firozabad. Firozabad is famous for bangle business, bangle making business. वहां का एक लड़का है, उनका नाम है मुकेश. So everybody in Firozabad is engaged in bangle making. Bangle making के अलावा इनका ये और कुछ बिजनेस करना नहीं जानते. लेकिन मुकेश बोल रहे, I want to drive a car. मैडम, मैं बैंगल मेकिंग नहीं करूंगा, मैं एक कार चलाऊंगा. मुकेश insists on being his own master. मुकेश थोड़ा जोर लगा के बोल रहे, says in emphasis that he would become a mechanic. I will be a motor mechanic. He announces, मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा. ठीक है? Do you know anything about cars? कार के बारे में कुछ जानते हैं क्या? No. But I will learn to drive a car. लेकिन मैं सीख लूंगा मैडम to drive a car. He answers, looking straight into my eyes. वो बच्चे की आवाज में इतना कॉन्फिडेंस है, but it is true that he cannot fulfill his ambition. लेकिन ये कि ये सच्चाई है, उनका इच्छा वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा. वो मेरे आंखों पे देखे बोले, मैडम आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. अब राइटर क्या बोल रहे देखो, his dream looms like a mirage. Looms spread over a failure. Like a mirage. Mirage means an illusion, a false appearance. Suppose if you are traveling, especially on a hot day, you can see the illusionary water there on the road. पानी की तरह दिखाई देगा. It's only an illusion. आप उनके पास आने के लिए कोशिश करो, वो नजारा दूर 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 जाएगा. So मुकेश का सपना भी ऐसे spreads like a mirage amidst the dust of street. ये दूर से भरा हुआ ये गली में उनका सपना भी एक मिराज की तरह स्प्रेड हो रहे. When his own town, Firozabad, famous for its bangle. फिरोजाबाद के गली में मुकेश का सपना एक मिराज की तरह स्प्रेड हो जाती है. फिरोजाबाद, it is the center of India's glass blowing industry. ये इंडिया का ग्लास मेल्टिंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है. Where देखो
Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. यहाँ पे every other family, एक घर छोड़ के every other family in Firozabad is engaged in bangle making. In the center of India's glass blowing industry. ये फिरोजाबाद इंडिया का ग्लास मेल्टिंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है, where families have worked, families have spent generation, पीढ़ियों से यहाँ पे फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, वर्किंग अराउंड द फर्नेस, चूल्हे में काम करके, वेल्डिंग ग्लास वेल्ड कर जोड़ना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड. इट सीम्स ऐसे लग रहे फिरोजाबाद के लोग ये लैंड का, इंडिया की, भारत की सभी स्त्रीजनों के लिए बैंगल्स फिरोजाबाद में ही बना रहे. You will feel just like that. Because wherever you go in Firozabad, you can see bangles. So ऐसे लगते हैं इंडिया की इस लैंड के हर एक स्त्रीजनों के लिए बैंगल्स यहाँ पे बना रहे. मुकेश फैमिली इज वन, ये मतलब इनमें से एक परिवार है मुकेश का भी फैमिली. None of them know, ये बात किसी को भी पता नहीं, that it is illegal for children like him. इनके जैसे बच्चों के लिए ये इलीगल बात है. What? To work in the glass furnace. ऐसे ग्लास चूल्हे में काम करना कैसे? With high temperature. इतना हाई टेम्परेचर में, इन dingy cell, dingy means dark and dirty cells, without air and light, वहां पे हवा नहीं है और लाइट नहीं है. And the law, कानून, if enforced, if executed, अगर कानून स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा तो could get him and those 20,000 children out of the hot furnace. मुकेश के साथ करीब 20,000 बच्चों को अपन ये हॉट फर्नेस से बचा सकते हैं. Where this लोग work hard their daylight hours and often losing the brightness of their eyes. उनका दिन का टाइम पूरा ऐसे सिचुएशन में ये काम कर रहे हैं. हाई टेम्परेचर, dingy cell, dark and dirty cell, without air and light. यही है बैंगल मेकिंग का खतरा. राइट हियर क्लियरली बोल रहे हैं अगर कानून स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ऐसे के कानून बनाकर रखा है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, तो अगर कानून स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा तो मुकेश के साथ 20,000 बच्चों को अपन ये हॉट फर्नेस से बचा सकते हैं, जहां they work hard their daylight hours. दिन में ऐसा अंधेरे कमरे में काम कर रहे हैं, रात में रात है, अंधेरा है, often losing the brightness of their eyes. मुकेश आने जब से बोले मैडम चलो मेरा घर देखेंगे, चलो. मुकेश आइस बीन, मुकेश का आंख चमक रहे खुशी से. As he volunteers, as he supports to take me home, which he proudly says, गर्व के साथ बोल रहे हैं, is being rebuilt. मैडम देखो मेरा घर नया बन रहा है. बहुत गर्व के साथ मुकेश बोल रहे हैं, मैडम देखो चलो मेरा घर देखेंगे. आने से भी सोचा ठीक है घर तो देख लेंगे. We walk down stinking lane. स्टिंकिंग फाउल स्मेल आने वाला लेन से, रास्ते से हम जा रहे हैं. कैसे? चॉक्ड विद गार्बेज, दोनों तरफ इतना चॉक्ड विद गार्बेज. देन पास्ट होम, टेम्पररी होम, दैट रिमेन हॉवल. हॉवल मीन्स झोपड़ी, शेड, 4 स्टिक में बना कर रखा है. हॉवल कैसे? हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल, गिरा हुआ दीवार, नो विंडोज, खिड़कियां नहीं, एंड क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएक्सिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेज. जानवर और मनुष्य के साथ एक साथ मिलजुल के रहते इन एन एंशिएंट स्टेज. पुराना जमाने में
मनुष्य जानवरों के साथ कैसे रहते थे, ऐसे एक साथ देखो इतना सड़ा सा एक एटमोस्फियर वहां पे। देन he stops at the door of one such house. ऐसा एक घर के पास आ गया। ऐसा घर मीन्स हॉवल, शेड विथ क्रम्बलिंग वॉल, गिरा हुआ दीवार और वोबली डोर, टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा, नो विंडोज, खिड़कियां नहीं। ऐसा एक घर के पास हम दोनों आए। एंड ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स, नॉक्स ये वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट। अपना पैर से एक वोबली टेढ़ा मेढ़ा अनस्टेडी, सीधा भी नहीं है, अनस्टेडी दीवार के पास आगे पैर से धक्का देके वो खोल दिया। एंड pushes it open, वो दरवाजा खोल दिया। We enter a half built shack, आधा बनाया हुआ एक झोपड़ी के पास हम आए। In one part of it, उसका एक तरफ thatched with, thatch करना रूफ बना के रखा है, छत बना के रखा है, with Dutch grass, सूखा हुआ घास है। वहां पे जिसे फायरवुड स्टोव, लकड़ी का चूल्हा है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिसलिंग फ्राइंग स्पिनिश लीव्स, पालक के पत्ता फ्राई भी कर रहे हैं। तो उसमें आधा बनाए हुए एक झोपड़ी के पास आ गए। उसमें एक तरफ कंप्लीटली रूफ बना कर रखे विद डेड ग्रास, वो उसके नीचे एक लकड़ी का चूल्हा है। वो लकड़ी के चूल्हा के ऊपर frying Spanish leaves, and on the ground in large aluminium plates, बड़े बड़े aluminium plates में और chopped vegetables, कटा हुआ vegetables। A frail young lady, a weak young lady is cooking the evening meal for the whole family। पूरा परिवार वालों के लिए एक कमजोर लेडी बैठ के खाना बना रही है। ये कौन है? शी इज द वाइफ एंड दो THOUGH, उसमें बुक में आर लिखा हुआ, थ्रू लिखा है, थ्रू ने दो। आइज फिल्ड विथ स्मोक, शी स्माइल्स, आंख पूरा धुआं भर के फिर भी आज गेस्ट को देखे वो स्माइल कर रही है। ये कौन है? She is the wife of Mukesh's elder brother. ये मुकेश का elder brother की wife है। Not much older in years. उम्र में ज्यादा बड़ी थोड़ी है, बुढ़ी थोड़ी है, जवानी है। But she has begun to command as the bahu. लेकिन she has started the command as the bahu, daughter-in-law of the house. घर की कौन है? बहू। Already in charge of 3 men. Already घर के अंदर की 3 लोगों का इंचार्ज है। मुकेश, his elder brother and their father. इन तीनों को खाना प्रिपेयर करना, उनको सेवा करना। Then when the older man enters, जब घर की बड़ा आदमी आएगा, बड़ा आदमी तो कौन है? उनका पापा के बारे में बोल रहे हैं। She gently withdraws behind the broken wall. ये धीरे वो टूटा हुआ दरवाजे के पीछे जाती है। And brings her face or brings her veil over to her, closer to her face. Veil, घूंघट। When the older man enters, जब घर की बड़ा आदमी आते, मुकेश का फादर, she gently withdraws behind the broken wall. वो टूटा हुआ दीवार के पीछे घुस जाती है। And brings her veil closer to her face. वो चेहरे पे घूंघट डालती है। As custom demands. Custom ये बोल रहे, daughters-in-law must veil their faces before male elders. daughters-in-law को क्या करना पड़ेगा?
मेल एल्डर्स के सामने अपना सुर कवर करना पड़ेगा. एंड इन दिस केस, यहां पे ये केस में ओल्डर कौन है? द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड पुअर बैंगल मेकर. यहां पे हमारे ये घर की एल्डर कौन है? मुकेश के फादर, ए पुअर बैंगल मेकर. डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतना साल की कठिन काम के बावजूद भी फर्स्ट एज ए टेलर. टेक्निक कौन था? ये टेलर था. देन ये बैंगल मेकर, फिर उसके बाद बन गया बैंगल मेकर. बट ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस. ये फेल हो गया, हार गया एक घर बनाने में. तो सेंडिंग हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो बच्चे को स्कूल में भेजने में असफल हो गए. व्हाट ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू, एक काम कर लिया. क्या था वो? ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस. ये जो जानता था वो बच्चों को सिखा लिया. क्या था वो? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. तो हियर सेकंड हीरो मुकेश. मुकेश बिलोंग्ड टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली. कहां पे रहते? फिरोजाबाद में. मुकेश का एम्बिशन क्या है? वो बोल रहे दैट ही वुड बिकम ए मोटर मैकेनिक. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? मैडम, मैं तो कार चलाना सीख लूंगा. लेकिन राइटर क्लियरली बोल रहे हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज. उनका सपना एक मिराज की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. वो धूल से भरा हुआ एक गली में. फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. It is the center of India's glass blowing industry, where families have worked in hot furnace, often losing the brightness of their eyes. मुकेश का फैमिली इनमें से एक है. ये बात किसी को भी पता नहीं. It is illegal for children like him to work in hot furnace. कैसा furnace? With high temperature, dingy cell, dark and dirty cell, without air and light. अगर कानून स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा तो could get him and those 20,000 children out of the hot furnace where they work hard their daylight hours and often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes shine with happiness when he volunteers and is done to his home. ऐसा गली से जा रहे, ऐसे कि stinking lamps, choked with garbage, with a past home, temporary home that remained like a hovel, shed की तरह खड़ा हो रहे, with a crumbling wall, wobbly doors, no windows. Families of humans and animals coexisting in a primal state. एंशिएंट जमाने में मनुष्य जानवर के साथ मिलजुल के रहते थे ऐसे एक स्टेट में. ऐसे घर के पास आ गया मुकेश, पैर से धक्का देके दरवाजा खोला एंड वी एंटर इनटू ए हाफ बिल्ट शैक. वो भी शाक है, झोपड़ी है, आधा बने हुआ झोपड़ी के अंदर आ गई. एंड इन वन पार्ट ऑफ इट टैच्ड विद डेड ग्रास. वो झोपड़ी की एक तरफ सूखा हुआ पत्ते से रूप बना कर रखा है, उसके नीचे एक फायरवुड स्टव है, उस स्टव के ऊपर पालक के पत्ता फ्राई हो रहे. एंड ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स आर और कटा हुआ वेजिटेबल्स. ये फ्राई यंग लेडी, एक कमजोर यंग लेडी क्या कर रही है वहां पे बैठ के? इवनिंग मील बना रही है. एक और है, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश द एल्डर ब्रदर. नॉट मच ओल्डर इन इयर्स, उम्र में ज्यादा बड़ी थोड़ी, बट शी हैज बिगन टू कमांड एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men. Mukesh the elder brother and their father. When the older man enters,
She gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब घर के बड़ा आदमी आते वो धीरे वो पीछे जाते, टूटा हुआ खिड़की के दरवाजे के अंदर जाते and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their face before male elders. हमारा इधर ये केस में एल्डर कौन है? एल्डर इज an impoverished poor bangle maker. पहले एक टेलर था, देन एक बैंगल मेकर बन गया, but he has failed to renovate a house, failed to send his 2 sons to school. 2 बच्चे को स्कूल में भी नहीं भेजा, but all he has managed to do one thing, he taught them what he knew. ये जो जानता था वो बच्चे को सिखा दिया. क्या था? The art of making bangles. So now I think you have got a clear idea about the beginning और मुकेश का परिवार के बारे में, मुकेश का घर के बारे में, मुकेश का काम के बारे में और बैंगल मेकिंग बिजनेस के खतरे के बारे में. So we shall learn the remaining part in the next class. Thank you very much.